কিন্তু কেউ কোনোদিন হাত বাড়িয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেনি। আমরা অনেক বাঙালি বোনেরা তাই আজকে এমআইএম পার্টিকে সাপোর্ট করছি। আমাদেরকে আশা দিয়েছে আমাদের হাতে হাত মেলাবে, আমাদের সাথে থাকবে এবং আমাদের যে কাস্ট সার্টিফিকেটের জন্য আমাদের এখানে কোনো কিছুরই সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। তো আমি এমপি সাহেবের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের কাস্ট সার্টিফিকেটের জন্য একটু বাঙালি ভাই বোনেদের জন্য ভাবার জন্য। এবং এখানে অনেক শিক্ষিত ছেলে আছে, আমাদের বাঙালি অনেক মেয়ে আছে যারা বেকার ঘরে বসে আছে, তাদের কোনো কিছু মানে গভর্নমেন্ট থেকে সুযোগ সুবিধা আমরা কোনোভাবেই পাই না। তো সেই সব জন্য একটু ভাবার জন্য অনুরোধ করছি। আর বিশেষ করে আমাদের যারা বাঙালি ভাই বোনেরা আছে তাদের সবাইয়ের কাছে আমার অনুরোধ রইল, এমআইএম পার্টিকে 1 ডিসেম্বর ভোট দিয়ে জিতিয়ে আমাদের এমআইএম পার্টির হাত মজবুত করুন। সবাইয়ের কাছে আমার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ। अभी आपसे मोहतरम अधिपद और मुखातिब थे। आइए मैं मोहतरम सीमांतु सरदार से गुजारिश करूंगा कि वो जलसे को मुखातिब करें। नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं भी इस हैदराबाद के शहर में अपने बचपन से लेके जवानी के दौर तक बंगाल के सभी साथियों के साथ, सभी लोगों के साथ बड़ा पला हूँ। साथियों, आज इतने बड़े मंच पे हम बंगाल के जो माइग्रेंट्स थे, जो आज यहाँ बस रहे हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से। तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा समस्त एमआईएम पार्टी के बड़े लीडर्स, जो भी हमारे ग्राउंड वर्क करते, सभी साथियों को, सभी भाइयों को, सभी मेरे बड़े सभी को। और कुछ शब्द बंगाली में भी कहना चाहूँगा। साथियों, বন্ধুজন, দেখতেই পাচ্ছেন যে এত বড় মঞ্চে আমরা ওটার স্বপ্ন দেখিনি কোনোদিন। আমাদের সাহস দেয় না কেউ যে আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছাবো যাতে লোকেরা আমাদের দেখে বলবে না এরা কিছু একটা কাজ করছে, তাই এই জায়গায় এসে পৌঁছাচ্ছে। মনে রাখুন বন্ধুজন, আমরা শুধু এখানে কাজের ক্ষেত্রে আসিনি, আমরা এসেছি এই শহরে হায়দ্রাবাদকে ডেভেলপ করতে, এই শহরে হায়দ্রাবাদের নাম রোশন করতে। জানা আছে যে হায়দ্রাবাদের নাম করার জন্য অনেক বাসিন্দারা এসে এখানে বাস করছে, কিন্তু আমরা বাঙালিরা না খেয়ে না শুয়ে দিন রাত কাজ করি, দিন রাত নিজেদের রক্তর মতন ঘাম ছুটিয়ে নিয়ে এই শহরের জন্য হাত মজবুত করার জন্য দিন রাত খাটি। কিন্তু বন্ধুজন, আজ পর্যন্ত আমরা কারোর কাছে সাহায্য পাইনি। আপনাদের জানিয়ে দিই, আমরা হয়তো এখানে গত 60 থেকে 70 বছর বা আরো বেশি বছর ধরে আছি, কিন্তু আমাদের দিকে এত ভালো নজর কেউ রাখেনি। এত যে পার্টি মেম্বারসরা আছে, যে বিজেপি বলুন, টিআরএস বলুন, টিডিপি বলুন, যারাই, আমরা বাঙালিরা সমস্ত সবার হাত ধরে চলার চেষ্টা করেছি, সমস্ত সাহায্য পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি, বাঙালি বাচ্চাদের ভালো শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, বোনেদের কিছু সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু না, আমাদের বাঙালিদের শুধু দেখতো, কাজের সময় কাজ নিত আর ভুলে যেত। বাট ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ আমি দেখেছি এআইএমআইএম এর দল সমস্ত মেম্বাররা এগিয়ে এসেছে, আমাদের হাত ধরেছে আর সাহায্য করার ওয়াদা করেছে। এবং এখন মধ্যেও এই গত 3 বছরের মধ্যে অনেক বাঙালিরা এই জায়গা থেকে অনেক কিছু পেয়েছে। তাই আশা করছি বন্ধুজন, আপনারা সবাই মিলে এআইএমআইএম দলকে ভোট দিয়ে অবশ্যই এনাদের হাত মজবুত করবে, আসাদুদ্দিন স্যারের হাত মজবুত করবে, মুমতাজ খান সাহেবের হাত মজবুত করবে। যেখানে যারাই আছেন সবাই 1 তারিখে সকাল সকাল উঠে যে যেরকম থাকেন অবস্থায় স্নান করে সাবধানের মধ্যে যাবেন, ভোট দিয়ে এআইএমআইএম পার্টিকে অবশ্যই জিতাবেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। आइए मैं रियासत बिहार से नव मुंतखबा रुकन असेंबली जनाब इजहार अस्फी साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो जलसे को मुखातिब करें। आज के इस जलसा के सब हमारे मेहमान खुसूसी डाइस पर बैठे हुए तमाम
और सामने में बैठ हमारे सामीन हजरात। दोस्तों, मैं एक पैगाम देने के लिए आप लोगों के पास खड़ा हूं चंद मिनट के लिए। हम लोग बिहार से आए हैं और बिहार में इस मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के नाम पर हम तमाम बिहारी लोग एक उम्मीद जताए हैं और उस उम्मीद के अलावा अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें हम तमाम बिहार के लोग मिलकर 5 एमएलए को चुन करके भेजा गया है विधानसभा में। लेकिन मैं एक बात आप तमाम लोगों से बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो 5 आदमी बिहार में जीते हैं, खास तौर पर सीमांचल पर, तो आप लोग सुन लीजिए कि हम लोग भाजपा गठबंधन को हरा करके आए हैं और कोई भी आदमी 30, 40, 50 हजार से नीचे नहीं जीता है। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच आने वाले 1 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। उसके तहत यहां पर इस इलेक्शन में पूरी दिल्ली उजड़ के आ गई है। दिल्ली से आने का मतलब कुछ तो है कि यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का एक अपना पकड़ है। इसको नीचे दिखाने के लिए गृह मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री यूपी के यहां पर आके पहुंच गए हैं। मेरे दोस्तों, अब उन लोगों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। उस दिल की धड़कन को बढ़ने के लिए हमें उसको सलाह देते हैं कि वह कोई आला से आला हॉस्पिटल में जाकर के अपना दिमाग का ऑपरेशन करे। मेरे दोस्तों, आपके बीच बहुत सारे मेहमान हैं और तमाम लोगों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले 1 तारीख को आप तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ पतंग छाप पर वोट देकर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह रहमान आज यहां से बिहार की सरजमीन पर इन्होंने जाकर वहां पर 5 असेंबली रुकन को जितवा के आए हैं हम, और बंगाल में भी इंशाअल्लाह रहमान हमारे वहां पर पहुंच होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूर की बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की सरजमीन पर भी जाकर हम लोगों ने झंडा लहराने का काम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आपसे बिहार से नवमुंतखबा रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब इज़हार रफ़ी साहब मुखातिब थे। आइए मैं रियासत बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवमुंतखबा रुकन असम्बली जनाब अख्तरुल ईमान साहब से अदबन गुजारिश करूँगा तो दर्शकों को मुखातिब करूँ। रियासत बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब और मौजूदा रुकन असम्बली अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब से अदबन गुजारिश करूँगा। वतन अजीज के बहुत ही मारूफ मशहूर उल्फत मोहब्बत और सुजात के शहर हैदराबाद के मुकामी इंतज़ामिया के ताल्लुक से कॉरपोरेशन के इलेक्शन के मरकजी जलसे में हम सबों के महबूब नज़र मैदान सियासत के वली कामिल जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा जनाब भाई इम्तियाज जलील साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब मुमताज अहमद साहब, एमएलए जनाब जाफरी साहब, एमएलसी जनाब जुल्फ़िकार साहब, एक्स मेयर शहर हैदराबाद, बिहार से तशरीफ फरमा हमारे हम जलीस रुकने असम्बली नौमुंतखब जनाब भाई इजहार अस्फी साहब, वो जनाब भाई अंजार नईमी साहब, रियासत बिहार के एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब, मजलिस के खादिम बिहार के तर्जुमान जनाब भाई मौलाना गुलाम रब्बानी नस्तर साहब, वो जनाब भाई डॉक्टर अबू सायम साहब, करीमनगर से यहाँ पूरी तवानाई के साथ अपनी जमात को लेकर मजलिस की खिदमत करने वाले रफीक जनाब भाई अहमद हुसैन करीम नगरी साहब, और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों,
मुस्लिम और गैर मुस्लिम साथियों और मीडिया के सच्चे तर्जुमानों, मैं इस वक्त नेपाल और बंगाल के सरहदों से चलकर यहाँ आया हूँ। मुझे अपनी कमाईगी का एहसास है कि इस शहर खिरत को मैं कोई अक्ल और शऊर की बात नहीं बता सकता, क्योंकि उस अंधेरे में चिराग आपकी बदौलत रोशन हुआ है और हम एक दो नहीं 5-5 वहां कामयाब हुए हैं। सबसे पहले मैं इजहार तशक्कुर करना चाहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम तर जिम्मेदारान का और शहर के बासिंदों का, जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आबियारी की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस वक्त 2 बातें मुख्तसर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन के ताल्लुक से, कॉरपोरेशन के इलेक्शन को, बल्दिया के इंतखाब को, गलियों की सफाई, नालियों की तामीर, रोशनी के इंतजाम के इलेक्शन से ताबीर किया जाता है। लेकिन जब आप अपनी अजमत पर जरा गौर तो कीजिए कि इस वक्त पार्लियामेंट की लड़ाई में जिस तरह से लोग बेचैन होते हैं, दिल्ली के 56 इंच के सीने वालों को भी नाक रगड़ने पर आपने मजबूत कर दिया है कि आपकी अहमियत कितनी है, कि आप कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, इस अजमत का जरा ख्याल रखिए कि आपने सिर्फ यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खड़ा नहीं किया है, बल्कि मैं दावे के साथ और फख्र के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ अजीजी आदिल हसन एडवोकेट के जुमले को दोहराता हूं कि भले ही वतन अजीज के लिए दारुस सल्तनत के नाम पर दिल्ली का नाम लिया जाता है, लेकिन पूरे वतन में, पूरे भारत में किसी बेटी की इज्जत टूटती है, किसी का कारोबार लुटता है, किसी नौजवान के सीने पे जब गोलियां चलाई जाती हैं, तो मजलूम बस्ती जिसकी तरफ नजर करती है वो शहर हैदराबाद है। यानी मजलूमों के दारुस सल्तनत का नाम शहर हैदराबाद है। क्या दिया नौजवानों, मैंने तो ये सुना है कि शहर हैदराबाद की हमारी ज़ईफ दादियां जब पोते और पोतियों को लोरियां सुनाती हैं, सर पर हाथ रखती है, इस तरह की आवाज आती है, तालियां ऐसी कर दो, ताल कर दो, भाजपा और कांग्रेस के रुखसारों को लाल कर दो, तालियां इस तरह पीटो, तालियां इस तरह पीटो। मैं इस पर 2 बात कहने आया हूं सिर्फ कि आपने जो मुदब्बिराना सियासत की है यहाँ पर, यह सियासत एक ऐसी रोशनी है कि पूरे मुल्क में इसकी रोशनी फैल रही है। डाकुओं ने, लुटेरों ने यह समझा कि चलो एक बस्ती में रोशनी आ गई, बहुत सारी बस्तियों में अंधेरा है, हम अपना डाकाजनी वहां कर लेंगे, नकब वहां लगा लेंगे। हैदराबाद महफूज था आपका, लेकिन हैदराबाद की रोशनी महाराष्ट्र भी पहुंच गई है। वहां के चोरों को भी परेशानी हो गई है कि शहर में रोशनी आ गई है, डाका किधर डालें। रोशनी यूपी में भी पहुंच गई है, और हद तो यह है कि पूरे मुल्क के अंदर में सबसे ज्यादा अंधेरे का डेरा और तारीकी का बसेरा जिस सीमांचल में था, एक एक नहीं 5-5 रोशन चिराग आपने जला दिए हैं। और बंगाल के अंधेरों में भी आपका इंतजार है। इसलिए लुटेरों की जमात में बेचैनी पैदा हो गई है कि रोशनी से अदावत है तो चिराग जलाने वालों के बाजू को मरोड़ना होगा। और यही वजह है कि नफरत के सौदागरों ने गुजरात से आकर आपके यहां नापाक कदम जमाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, दानिश्वरों और अजीजों, अगर इस मुल्क में आप इज्जत के साथ, शऊर के साथ जीना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बंगाल की बेटी और बंगाल की शेर की तरह हमारा एक बंगाली अजीज यहाँ बात कर रहा था। ये गंगा जमनी तहजीब की अलामत, इससे बढ़कर और क्या पेश की जा सकती है। रोहित बीमूला की आवाज अगर कोई उठाता है तो असदुद्दीन अवैसी उठाता है। जालिमों, तुम्हारी इस बात में सदाकत नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है, बल्कि कान खोलकर सुन लो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुल्क में मजलूमों की जमात का नाम है, जालिमों को पंजा मरोड़ने वाली जमात का नाम है। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस रोशनी की आबियारी की, इस रोशनी की हिफाजत कीजिए। इस चिराग को और तेल डालिए। देखिए, दरख्त, पौधा जब खड़ा होता है तो उसको जमीन चाहिए, और जड़ें जितनी फैलती हैं, टहनियां और उसके साथ अगर जड़ों में पानी हो, आबियारी हो, खाद डाले तो उसके पत्तों में हरियाली आती है। इस वक्त अदल का, सुजात का, मोहब्बत का ये सजर सायादार, ये दरख्त जो घनेरी टहनियों के साथ खड़ा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिर्फ साया फगन आपकी बस्ती नहीं है, बल्कि पूरा मुल्क जो मजलूम है वो इसके साये को तलाश कर रहा है। मेरे भाइयों, दरख्त खड़ा है जिस जमीन पे, उस जमीन की बड़ी इस अमानत को संभालने की जरूरत है। आप जमीन है। मुझे मालूम है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब
ان کے آبا نے جو سیاست شروع کی تھی وہی بلدیہ کے الیکشن سے شروع کیا تھا، اور بلدیہ ہماری بنیاد ہے، اس لیے آپ ان کے جڑوں کو مضبوط کیجئے تاکہ اس وقت فرقہ پرستی کا، ظلم کا، زیادتی کا، نفرت کی جو ہوا پھیل رہی ہے، جو آندھی آ رہی ہے، اس کا مقابلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری جڑیں مضبوط ہو، تنے میں توانائی ہو اور مٹی ہماری محفوظ ہو۔ مجھے آپ کی پیشانیوں کی رمق یہ کہہ رہی ہے۔ میں کل تھا جناب بھائی ماجد صاحب کے حلقے میں، جناب بھائی مظفر حسین صاحب کے حلقے میں، جناب سرفراز انجینئر صاحب کے حلقے میں، نوجوانوں میں جو جوش دیکھا، بچوں نے جو نعرے لگائے، پردے سے ماؤں نے جو دعائیں دی ہیں، اور یہاں آپ کی پیشانی کی لکیریں کہہ رہی ہیں کہ ہماری جیت ہوگی، یقینی ہوگی۔ لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیت یقینی نہیں ہو، بلکہ اس وقت ہماری جیت ایسی تاریخی ہو کہ یہ الیکشن کی خبر پورے ملک میں پھیلے اور تمام تر کمزور طبقات کی توانا آواز بننے کا ہمیں موقع ملے۔ ہم امید کرتے ہیں اس شہر دیانت میں امانت کا خیال رکھا جاتا ہے، ووٹ امانت ہے، ووٹ شہادت ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، ہم اپنے بزرگوں تو نہیں کہہ سکتے لیکن تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بچہ یتیم ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد، اور قومیں یتیم ہوتی ہیں اپنے لیڈروں کو کھو دینے کے بعد۔ اس شہر نے پورے وطن کے مظلوموں کو اپنی قیادت دی ہے، اس قیادت کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے اور پورے ملک کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے، میری امیدوں سے بھی زیادہ آپ کامیاب کریں گے۔ حیدرآباد زندہ باد، مجلس اتحاد المسلمین پائندہ باد۔ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، کچھ دیر کے لیے جلسے کو وقفہ دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بعد نماز کے جلسے کا دوبارہ کارروائی کا آغاز ہوگا۔ بعد اذان کے بعد انشاءاللہ جلسے کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ محبان مجلس، آپ سے گزارش ہے کہ 5 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا، کا وقت مل رہا ہے، نمازیں پڑھ لیجئے آپ لوگ۔ 5 بجے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ نماز ادا کر لیجئے، 5 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے اعزاز، جلسے کی دوبارہ کارروائی کا آغاز کر رہا ہوں۔ ریاست مہاراشٹرا کے نو منتخبہ رکن پارلیمنٹ علی جناب امتیاز جلیل صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ نقیب ملت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، بہار تلنگانہ کے لیجسلیٹو اسمبلیز کے ہمارے تمام ایم ایل ایز، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران، نوجوانوں، ساتھیوں،
बुजुर्गों, मैं यहाँ पर आप लोगों के जोश, जज्बे, हिम्मत और ताकत को सलाम करने के लिए आया हूँ। वो इसलिए सलाम करने के लिए आया हूँ कि ये आप लोगों की ही ताकत है जिसने मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह को भी हैदराबाद की सड़कों के ऊपर घूमना पड़ रहा है। ये आप लोगों की ताकत, आप लोगों के जोश और जज्बे का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई ऐसा इलेक्शन इससे पहले कभी देखा नहीं गया है कि जहां पर महज एक बल्दिया का इलेक्शन है, लेकिन उस बल्दिया के इलेक्शन में केंद्रीय मंत्रियों की एक फौज, मुख्यमंत्रियों की एक फौज, पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां पर हैदराबाद में डेरा जमाए हुए है। हम एक सवाल करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर पूरी फौज को यहां पर भेज दिए है, मोदी जी आप क्यों नहीं आए? आप भी आ जाते, देख लेते हैदराबाद कैसा शहर है, हम घुमाते आपको चार मीनार पुराना शहर कैसा है। लेकिन आपको ये मालूम है कि हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी जा सकते हैं, हम देश भर में कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन हैदराबाद में किसी की दाल गलने वाली नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं। इसीलिए जो डर और खौफ आपको सताया तो आपने सबको भेज दिए, खुद दूर रहे। आप तो कल हैदराबाद आए थे वैक्सीन ढूंढने के लिए कि वैक्सीन कैसे बन रही है कोरोना की। 1 तारीख के दिन आपकी पार्टी को हैदराबाद की आवाम कैसा इंजेक्शन देने वाली है ये भी आप देख लेते थे तो आपको समझ में आ जाता था। लेकिन नहीं, वैक्सीन कोरोना का ढूंढने के लिए आएगा। 4 तारीख के दिन आपको पता चलेगा कि हैदराबाद की आवाम कुछ हटकर है। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अगर इस देश के अंदर अगर हमने आप लोगों से कुछ सीखा है और आप लोगों ने हमें कुछ सिखाया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में इस मुल्क के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को अगर आपसे हमने कुछ सीखा है तो अगर इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना हम लोगों ने आपसे सीखा है। मेरे भाइयों, आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम कोने कोने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंच रही है, फैल रही है, ताकत बनकर खड़े रह रही है। बिहार के अंदर हमने महज 5 सीटें क्या जीत ली। 5 सीटें किसी एक असेंबली के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन असर उसका क्या हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने बिहार के अंदर 5 सीटें क्या जीत ली, इतना हड़कंप मच गया मानो असदुद्दीन अवैसी साहब वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ गए हैं। बैठेंगे इंशाल्लाह, वहां पर भी बैठेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसका असर क्या हुआ है? हम 5 सीटें क्या जीत लिए वहां पर, अब महफिल सजती है भारतीय जनता पार्टी की, महफिल सजती है कांग्रेस पार्टी की, महफिल सजती है आरजेडी की, महफिल इन सब की सजती है, लेकिन चर्चा हमारा होता है, चर्चा हमारा होता। बस ऐसा हो गया है कि ये हैदराबाद की एक जमात, हैदराबाद की एक जमात जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये सिर्फ हैदराबाद तक महदूद है, बाहर इसे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। हैदराबाद के बाहर मजलिस का वजूद क्या है, लोग ये सवाल करते थे। हद तो ये हो गई कि लोग ये तक कहते थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले पार्लियामेंट के अंदर इतने सालों से जाते हैं और अकेले ही रहेंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों की दुआओं की वजह से अब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते हैं, मैं भी बैठता हूं आप लोगों की दुआओं की वजह से। और इतने घबराए हुए हैं, सोचते थे कि नहीं ये तो अकेले रहेंगे। तो जब हम 2 गए पहले मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर, इतनी तकलीफ हुई उनको, इतनी तकलीफ हुई कि 1 के 2 हो गए।
तो जिस दिन पहला दिन था, मुझे मालूम है नरेंद्र मोदी साहब ने अमित शाह से हम दोनों को देखकर क्या पूछा था, जानते हैं? अरे ओ सांभा, अरे ओ सांभा, कितने आदमी है रे? तो सांभा ने जवाब दिया, साहब है तो 2 लेकिन 200 पे भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरुआत हुई, और जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर पहला भाषण दिया तो एक भाजपा का एमपी बोला, पहले वो तो बोलते थे अब तुम भी बोलेंगे। मैंने कहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है, बोलने वालों की जमात है, और हम बोलेंगे, डटकर बोलेंगे। पहले तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे, और तुम्हारे बात को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कब तक ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सुना है अमित भाई चले गए, मैं अमित भाई कह रहा हूं, वरना हैदराबाद की हमारी एक बहन ने कुछ अलग नाम दी थी, मैं नाम नहीं देने वाला हूं, मैं नहीं बोलने वाला हूं, वरना ये बैठे हुए हैं सामने लेकर इसमें कि वह बनाते तब बनाते। क्या बोली थी मुझे नहीं पता, अब बोल रहे, ठीक है मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। ये इलेक्शन और पहले के इलेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह की ताकतें इकट्ठा हो गई, हर एक का मकसद यही है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के गढ़ के अंदर अगर हम उन्हें कमजोर कर देंगे, अगर अपने गढ़ के अंदर इन्हें हम खत्म कर देंगे, तो हम आगे का सपना, एक ख्वाब जो देख रहे हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, या देश के कोने कोने में, वहां पर जाने के लिए। वरना कहीं पर ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ है जहां पर बड़े बड़े नेता आते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके चले जाते हैं। हमारी एक पश्चिम बंगाल की बहन ने बंगाली के अंदर आपने भाषण दिया है। आपको एक हम बात बताना चाहते हैं, जिस दिन आप मजलिस से हमारा ताल्लुक हो गया है, आप अगर इशारों में भी बात कर देती तो हमारी आवाम समझ जाती आप क्या करना चाह रही है करके। ये मजलिस का एक रिश्ता है। लेकिन आज हमने देखा है हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर कैसे कैसे बयान दिए गए। इसी तरह का एक बयान हमने बिहार में अख्तर ईमान साहब के एक जलसे के अंदर सुना था, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के मौजूदगी में वहां के उम्मीदवार ने कहा था कि असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद से बिहार आया है, मैं उसके हाथ पैर तोड़ के वापस उसे हैदराबाद भेज दूंगा। पब्लिक ने उसी दिन तय किया कि तू क्या हाथ पैर तोड़ेगा, हम तुझे इलेक्शन के दिन दिखाएंगे। अख्तर ईमान साहब को 90,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वो जो हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा था वो 20,000 में ही लपेटा गया। और अब यहां पर एक भाजपा का नेता कहता है कि अगर हम चुनकर आ गए तो हम अवैसी भाइयों को अपने पैरों के नीचे रखेंगे। एक गंजू, समझता है गंजू, टकला, कहता है कि अगर हम आ गए तो पुराने शहर के अंदर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मैंने कहा कर ले, शर्त यह है जिस दिन तेरे सर पे बाल उग गए उस दिन कर ले सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरा कहता है कि ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, तुम अगर यहां पर उन्हें वोट देते हैं तो वो बिहार में ताकतवर होता है, यहां पर वोट देते हैं तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में ताकतवर होता है, यहां के लोग देंगे और इंशाल्लाह वहां पर मजलिस ताकतवर होगी, होगी, जरूर होगी। और आप लोगों को यह जिम्मेदारी उठाना है मेरे भाइयों। आज आप जो माहौल भारतीय जनता पार्टी यहां पर करने की कोशिश कर रही, एक नेता कहता है कि यह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिन्ना,
पाकिस्तान के जिन्ना उनका दूसरा रूप है। अरे वो जिन्ना जो थे वो चले गए। असद भाई ने ये कहा कि जीना, यहां मरना, इसके सिवा वो जिन्ना थे चले गए। असद भाई ने बोले जीना, मरना, इसके सिवा बस यही रहना है हमको। अच्छे अच्छे आएंगे, 56 इंच के 56 आकर चले जाएंगे, लेकिन हैदराबाद की सरजमीन को कोई मजलिस से छीन नहीं सकेगा मेरे भाई, मजलिस से छीन नहीं सकेगा। और ये जो जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी ताकत है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आज तक के एक डिबेट के ऊपर था, एक भारतीय जनता पार्टी वाला स्पोक्स पर्सन था, उसने कहा कि ये तो वो पार्टी है जो अकबर अवैसी देखो कैसी बातें करता है। मैंने कहा नींद आती है तुझे या रात भर अखबार 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 अखबार। अरे 4 तारीख तक सो जा, तुझे समझ में आएगा कि तुम्हारी पूरी ताकत लगा दिए थे यहाँ पर मजलिस। और यहाँ पर अगर लोग अपनी मोहब्बतों को इतने सालों से जो नवाजते आए हैं, दोस्तों ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की मशक्कत है कि जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फैल रही है। यकीन मानिए अगर इस बार अगर हम कमजोर हो गए तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिएगा कि मजलिस को यहाँ पर जो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, अपनी क़यादत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों से अकबर गुजारिश करने के लिए, एक भाई और एक बेटे की हैसियत से मैं आपको इतना कहने के लिए आया हूँ, आप लोगों से ये एक भीख मांगने के लिए आया हूँ कि 4 तारीख के दिन जब नतीजे आए तो सिर्फ हैदराबाद इसका जश्न नहीं मनाना चाहिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मनाना चाहिए। और हम भी फख्र के साथ महाराष्ट्र के अंदर हमने ये कहना चाहिए कि हम भी आए थे आपके दरबार में आप लोगों से इल्तिजा करने के लिए और आप लोगों ने हमारा सुना है। बस जाते जाते आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर मजलिस के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं मेरे भाइयों, तो एक बार दोनों हाथ ऊंचा करके मेरी आवाज के साथ आवाज लगाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते 1 तारीख के दिन सिर्फ धपाधप पतंग के ऊपर मारिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट अली जनाब इम्तियाज अली साहब मुखातिब थे। आइए अब मैं सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से अदबन गुजारिश करूंगा तो जल्से को मुखातिब फरमाएं। मजलिस के सदर मोहतरम मुखातिब करे घाची बाजार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैंडिडेट मोहम्मद गौस साहब से गुजारिश करूंगा कि जल्से को मुखातिब करें। सदर मोहतरम और सारे MP, MLAs, कॉर्पोरेटर्स तमाम का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठ के सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, ये इलेक्शन ये आपके वक़ार का इलेक्शन है। कभी मैं अपनी सालाना मोहतरम की जिंदगी में जब पहली दफा 4 मीनार से इलेक्शन लड़ने के आए थे, यही खिलवत था। मैं अपना कारवां इस पार्टी के साथ यहीं से चालू किया था। तो उस टाइम पे हमने देखा था और जो फास्टिस्ट ताकतें थी कि उस दिन अज़म लिया था कि हम इस फास्टिस्ट ताकतों को हम बाहर करेंगे। एक छोटी सी गलती से 4 मीनार के दामन की जो सीट ये फास्टिस्ट ताकतों के पास गई। आज वही सीट को बचाने के लिए और हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने के लिए जो मुनसूबेबंदी कर रहे हैं, जो बिहार, झारखंड, बंगाल, जो तमाम जगह के ऊपर सदर मोहतरम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दावत दी जा रही है, वो दावत की लाज रखना
ये हैदराबाद के वोटर का फर्ज है कि सारी निगाहें सारी दुनिया की आपकी तरफ है। मैं आपसे सदर मोहतरम की मौजूदगी में मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम में सदर मोहतरम ने कहा था कि या तो मैं सदर मोहतरम के खांदे पे जाऊंगा या सदर मोहतरम मेरे खांदे पे जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं अपनी आल औलाद की कि हम मतलब ना कभी ऐसी गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं। मैंने बहुत बड़ा एहसास हुआ मुझे कि हमारी कौम को आज हमारी कौम को इस रहनुमाई की ज़रूरत है, इस घराने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप अहमियत समझिए कौन कौन इस इलेक्शन में आ रहा है और क्या कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। आगे का रास्ता बड़ा कठिन है। आपका एक एक वोट हर हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हक में होना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार प्रदेश के सदर व कायद मुखन्ना व रुकन असम्बली बिहार मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, कोचा दामन और बहादुरगंज बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब अंजर नईमी साहब, इज़हार अशफी साहब, औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब आदिल साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का ये आखिरी जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 दिन से आप मुसलसल मजलिस के जलसों में मुख्तलिफ मजलिस के कायदीन की तकारीर को, उनके बसीरत फ़रोज़ किताबात को सुना। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कोई नई बात नहीं करूँगा, सिर्फ दोबारा आपको इस बात की याद दिला रहा हूँ कि 1 दिसंबर के दिन आप तमाम को, हम तमाम को अपने वोट का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना ज़रूरी है और पोलिंग परसेंटेज अगर माजी की तरह रहेगा तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि सुबह 7 बजे से आप सीधा पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए और इस बल्दी इंतखाबात में आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर पर मजलिस का निशान पतंग देखकर वहां पर आपको मोहर लगाना है और उसको मोड़कर एहतियात से फोल्ड करके जो बैलेट का डब्बा है, बॉक्स है, उसमें आपको अपना बैलेट पेपर डालना है। ये याद रखिए, अपने घर में सबको बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। अब जहां सवाल मजलिस की मुखालिफत का, बहुत से लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मजलिस के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज के इस जलसे में साबिक़ मेयर मीर जुल्फ़िकार अली साहब भी बैठे हुए हैं। अगर मेरा हाफिजा सही है तो आज से 32 साल पहले जब बल्दिया के इंतखाबात हुए थे
تو میر ذوالفقار علی صاحب 4 محل سے مجلس کے امیدوار تھے، اور وہاں سے جب پولنگ ہو رہی تھی، تیلگو دیسم کی حکومت تھی، این ٹی راما راؤ چیف منسٹر تھے، تو اب جو پڑوسی ریاست ہے آندھرا پردیش سے، وہاں سے تیلگو دیسم کا کوئی ایک آدمی نام تھا جس کا نام بمبولو سریواسی، ہاں بمبولو سیوا ریڈی نام تھا، وہ 4 محل میں آ کر موسا بولی کے پاس باضابطہ بم پھینکے تھے۔ یہ نوجوانوں کو نہیں معلوم، یہ بزرگوں کو معلوم ہوگا، چاچا جو لکڑی اٹھا رہے تھے جب سے دیکھو ان کو معلوم ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو اس میں ایک ہماری عزت دار ماں زخمی ہوئی تھی، تو زخمی ہونے کے بعد جب ان کو اسپتال لے کر جا رہے تھے تو اس ہماری ماں نے کہا کہ اسپتال میں ضرور جاؤں گی، پہلے جو مقصد کے لیے گھر سے نکلی تھی وہ مجلس کو ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈال کے اسپتال کو گئی۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا، چندرا بابو نائیڈو 2002 میں چیف منسٹر تھے، تو چندرا بابو نائیڈو باضابطہ پرانے شہر کے گلیوں میں روڈ شو کیے تھے، ایک چیف منسٹر ہوتے ہوئے خوب روڈ شو کیے۔ تو بڑے بازار میں ان کا جلسہ چل رہا تھا، اچانک ایک چیز زپ بول کے سامنے گری ان کی، تو دیکھے تو اس میں 8 نمبر کی چپل تھی۔ تو چندرا بابو نائیڈو بھی آئے تھے، پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے انتخابی مہم چلائی تھی، مگر الحمدللہ اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا۔ تو یہ مجلس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے پورے باطل طاقتیں اپنی طاقت لگاتے ہیں، پورا متحد ہو کر آ کر مجلس سے انتخابات میں مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ دونوں واقعات اس لیے بتایا ہوں، اور خاص طور سے نوجوانوں کو، کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے متحد ہو کر ایک ایک سیٹ پر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرایا، اب یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی طرح بے باکی اور بہادری کے ساتھ 1 دسمبر کے دن صرف ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونا کہ ہم کو اپنا ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ دلوانا ہے۔ یہ 2 کام اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک عظیم الشان کامیابی سے ہم کنار کریں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ مجلس کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن اپنے گھر سے نکلیے، صبح اپنے گھر سے نکل کر پورے افراد خاندان کو لے کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میری نوجوانوں سے گزارش نہیں ہے، بلکہ نوجوانوں کو زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر راؤنڈ مارنے پہ مت نکلیے، اپنا ووٹ ڈالیے، اپنے گھر والوں کو لے کے جائیے، اس کے بعد ساری دنیا کی خبر کریے، وہاں کیا ہو رہا، ادھر کیا ہو رہا، وہ کیا ہو رہا، پہلے اپنا ووٹ ڈالیے، اور پرامن طریقے سے ہم کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ مجلس کی کامیابی یقینی ہے، چاہے کوئی بھی آ جاؤ۔ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بھی آ جائیں گے، مگر وزیر اعظم پلین سے اتر کے ایک اس جگہ پر چلے گئے جہاں پر کووڈ کی ویکسین بنانے کی فیکٹری دیکھنے چلے گئے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی آ کر کچھ اپنی زبان سے کہہ دیں گے تو حیدرآباد بلکہ پرانے شہر کی عوام میں اور جوش آ جائے گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یو پی کے چیف منسٹر آ کر بھی بڑی بڑی باتیں کر کے گئے۔ ہم ان سے اتنا ہی ان کے بارے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ وہ یو پی کے چیف منسٹر ہیں جب ہاتھرس میں ایک غریب دلت بچی کی عزت لوٹ کر، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر اس کو چھوڑ دیا گیا کھیتوں میں، اور اس کی وجہ سے اس دلت لڑکی کا انتقال ہو گیا، تو یو پی کے چیف منسٹر نے اس غریب دلت بچی کے ماں باپ کو تک اجازت نہیں دی اس کا انتم سنسکار کرتے وقت۔ یعنی وہ بچی کے جسم کو جب جلایا جا رہا تھا تو اس کے ماں باپ سامنے نہیں کھڑے تھے،
बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के मां बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहां पर हुआ कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते, इतना याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रख लो आप। और फिर दूसरा ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम कब्रिस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले, उन्हें बैठे हुए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्हों आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए। और एनएसए के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उसको बंद करिए। और उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में अगर किसी का राज चलता है तो ठाकुरों का राज चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी ठाकुर है, योगी है मगर ठाकुर है। ये मुख्तसर सा इनका तारुफ कराया हूं, वो भी नहीं करता था, मगर ये मीडिया वाले बोल रहे थे जरा कुछ बोल दो ना, हम चला लेते टीवी पे। ये होगा। अब फिर मीडिया के लिए कह रहा हूं, होम मिनिस्टर हैदराबाद को आए। मैं हर इलेक्शन की तकरीर में आपके दरमियान में कह रहा था कि बीजेपी ने रोहिंग्या का मसला उठाया, मैंने उठाया। आप आकर हमारे को खुजाए तो खुजली आपको हो गई। आपके बीजेपी के एक आदमी ने कहा कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है। बोलना तो इन्हों बोल देते, मगर जब जवाब इनको मिलता असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस की तरफ से, तो जवाब का कोई नहीं दे, खामोश हो जाते। मैंने कहा अगर 30,000 है तो 1,000 नाम बता दो, और अगर 30,000 है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे थे दिल्ली में। 30,000 अगर रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में, तो इसका मतलब यह है कि इलीगल है, आप निकालो ना, उनको कौन रोक रहे आपको? फिर इनका ही एक आदमी बोल दिया कि पुराने शहर में पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी है। अच्छा 100 तो निकालो, 100 तो बताओ कितने इलीगल है अफगानी और पाकिस्तानी, 100 निकाल के बताओ, देखो ये है। आप वो भी नहीं बताते। अब होम मिनिस्टर ये बोल रहे, नहीं मेरे लिख के दो मेरे को, मैं कहीं को लिख के दूंगा। तो ये गुफ्तगू की आगाज बीजेपी से हुआ। अब
آپ بتاتے نہیں اگر یہاں پہ روہنگیا ہے پاکستانی ہے تو ہوم منسٹر آپ ہیں نا, میں تو نہیں ہوں. اس کا کوئی جواب نہیں. اور پھر آ کے بولنا کہ ہم حیدرآباد میں اپنا میئر بنائیں گے. امیت شاہ صاحب, حیدرآباد کی کہاوت ہے بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے رہتے. آپ آئے حیدرآباد کو, آپ نے دیکھا ہوگا چار مینار کتنا خوبصورت ہے. اس چار مینار کی فنکاری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے یہ. اور آپ آ کر یہ بولتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں میرے کو لکھ کے دو. آپ کے ہی پارٹی کے کوئی بچے سے پوچھ لو, انہیں بل بلا رہا تھا, یہ انہیں بل بلا رہا تھا. روہنگیا پاکستان, اس سے پوچھ لو, آپ بتاؤ کتنے نام ہے, کیا ہے. آپ کی پارٹی نے کہا کہ پرانے شہر پر سرجیکل سٹرائک کریں گے. یہ پہلی حکومت ہے جو بھارت کے ایک شہر کے رہنے والوں کو پاکستانی افغانی کہہ رہی ہے. کیا یہ بی جے پی کا کلچر ہے کہ جو اس علاقے میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, دلت بھی ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, مارواڑی ہیں, راجستھانی ہیں, بنگالی ہیں, آپ ان کی توہین کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی یہ پرانے شہر کی عوام اس توہین کا جواب 1 دسمبر کو دے گی اور بتائے گی کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک کی آپ بات کر رہے تھے نا, ہم ڈیموکریٹک سٹرائک کر کے دکھائیں گے بی جے پی کے خلاف 1 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی. اب رہا سوال یہ کانگریس کے لوگوں کا, عجیب ہے, ایک سیٹ بھی نہیں جیتیں گے دیکھو آپ کانگریس والے انشاءاللہ تعالی. ایک آدمی بولتا میں ووٹ کاٹ رہا ہوں, ایک آدمی بولتا انہوں یہ بول رہے, دوسرا بول رہا جہاں اسد بھائی نہیں ہم کو دے دو. میں مرد نہیں, میرا بھائی مرد. یہ کب تک تم لوگوں میں اتحاد نہیں؟ ایک بول رہا میرے خلاف, دوسرا یہ بول رہا. ایک اسد الدین اویسی اور مجلس کے ایم ایل ایز کھڑے ہوئے ہیں, اطراف میں بی جے پی, کانگریس, ٹی آر ایس بھاگ رہے, ہم لوگ کھڑے رہ کے دیکھ رہے. کھیلو بیٹا اٹھا چھما, کھیلو کھیلو, دیکھیں گے تمہارا صدقہ پھر رہے مارے. مجلس 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 مجلس. ارے کوئی تو حیدرآباد کی بات کرو. حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ پولوشن کا ہو گیا, معلوم آپ کو. جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ گھر جا کر جب ناک صاف کرتے تو اتنی کالک نکلتی ناک میں سے. پولوشن کی بات کرنا ہے, پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے تو انہوں ہندو مسلم کا پولوشن کریٹ کرنا چاہ رہے بی جے پی والے. 6.5 سال سے حیدرآباد میں امن ہے. میں پھر سے پوچھ رہا ہوں بی جے پی کے لوگوں سے کہ 2019 سے اب تک بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کتنے پیسے دیے؟ سیلاب جب آیا تو بی جے پی نے کرناٹکا کو پیسے دیے, حیدرآباد کو کیوں نہیں دیے؟ کرناٹکا میں کروڑ روپے دیے, حیدرآباد میں 1 پیسہ نہیں دیے. یہ جو 10,000 روپے حیدرآباد کی عوام کو ملے وہ مجلس نے نمائندگی کی تھی چیف منسٹر سے. اگر ملتے پیسے مرکز سے, نریندر مودی کی حکومت سے, تو کم سے کم ایک غریب کو 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ملتا تھا. مگر حیدرآباد سے نفرت بی جے پی کو ہے. جب یہ مسئلوں کو ہم اٹھاتے ہیں تو بی جے پی آ جاتی جنہ کے اوپر, بی جے پی آ جاتی ٹیررزم کے اوپر, بی جے پی آ جاتی فلاں کلچر کے اوپر. آخر بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کیا کیا مرکز میں رہ کر؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجھے آپ سے ہی درخواست کرنا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 1 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کو استعمال کریے, اور جس طرح سے بہار کی عوام نے مجلس کے ایم ایل ایز کو وہاں پر کامیاب کیا, انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی ہم اپنے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے. پولنگ کریے, ووٹ ڈالیے, جتنا ہو سکے ووٹ ڈالتے رہیے. پولنگ بوتھ کو جائیے. ایک دن میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ نکال کر پولنگ بوتھ کو جائیے, اور پولنگ بوتھ کو جا کر
ان فرقہ پرست اور فاشسٹ طاقتوں کو جواب دیجئے جو حیدرآباد کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر وزیر داخلہ امیت شاہ تو آئے تھے مگر ہم وہ جواب دینے سے قاصر رہے کہ جب دلی میں فساد ہوا تھا ایک ویڈیو نکلا تھا, 3 مسلمان بچے روڈ پر پڑے ہوئے تھے جس میں سے ایک کا نام فیضان تھا. پولیس والے مار مار کر ان سے کہہ رہے تھے جن گن من پڑھو, تو فیضان جو ہے تکلیف میں جن گن من پڑھ رہا تھا. بعد میں فیضان کی موت ہو گئی اور فیضان کے یہ جو چہرے پہ جو آپ کے منہ جو ہڈی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی, اس کے سر کے اندر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, پیٹ کے پھسلیاں ٹوٹے ہوئے تھے. اب تک امیت شاہ کے ماتحت جو دلی کی پولیس ہے ایک پولیس والے کو سسپینڈ نہیں کیے نہ گرفتار کیے. یہ بی جے پی کا کارنامہ ہے. دلی میں فساد ہوا, 20 سے زائد مذہبی عبادت گاہوں کو ڈیمیج کیا گیا یا جلا دیا گیا, لوگ مرے 50 کے اوپر, جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی مرے افسوس کے ساتھ, مسلمان بھی تھے. کیا دلی کی حکومت نے اتنا بڑا جینوسائیڈ دلی میں ہوا؟ کیا پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام میں یہ پوائنٹ نہیں ہے؟ کیا ہوم منسٹری کے گائیڈ لائنز میں نہیں ہے کہ جہاں فساد ہوتا وہاں پر سرکار جس کا گھر جلتا ہے چاہے کسی مذہب کا ہو, جو مرتا ہے جو زخمی ہوتا ہے اس کو امداد دے گی, کمپنسیشن دے گی, ایکسگریشیا دے گی؟ کیوں نہیں دیے بی جے پی کی حکومت؟ آج آ کر آپ حیدرآباد میں ہم کو بتا رہے ہیں, ہم کو بول رہے ہیں دلی بھارت کا دارالحکومت کیپٹل, وہاں پر آپ کی ناک کے نیچے بدترین جینوسائیڈ ہوا اور آپ آ کر حیدرآباد میں یہ ان کا کارنامہ ہے. اور بہار میں بی جے پی جیتی نہیں, یہ بڑا محنت کر لیے, وہاں بھی بہار میں کیے تھے. بہار میں 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ کے بعد بی جے پی 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی, 1.5 سال میں 75 سیٹ پر آ گئے. 1.5 سال میں متروں 75 سیٹ پر آ گئے اسمبلی کی آپ. اور آپ سمجھ رہے نہیں موڈی بڑے پاپولر ہیں, کوئی پاپولر نہیں ہے. یہ میڈیا آپ کو چڑھا چڑھا کے, ان کی بھی مجبوری ہے بیچاروں کی, لائیو دکھاتا آپ کو, وہ دکھا دو, میڈیا دکھائے تو پبلک سمجھ گئی میڈیا کیا ہے. اب پبلک کے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا ہو چکی ہے. میں سلام کرتا ہوں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے, چاہے ہماری ماں اور بہنیں سیمانچل کی ہوں, کہ سیمانچل کی ہماری ماں اور بہنوں نے مجلس کو ووٹ اس لیے دیا کہ وہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ حیدرآباد سے جو اسد الدین اویسی آیا اس کو ستا کا شوق نہیں ہے, اس کو اقتدار کا شوق نہیں ہے, وہ لڑنے والا ہے, اس کو ووٹ دے رہے ہیں. اور یہیں پر میں جتنے پیدل دورے کیا پچھلے 10 دن میں ایک ایک مقامات پر جانے کی کوشش کیا, میں سلام کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ جو محبت اور جذبے کا انہوں نے اظہار کیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں کسی ایک عالم دین کے گھر پر ملنے گیا تھا تو پردے کے پیچھے ان کے گھر سے آواز آئی کہ اسد میاں جاؤ, ہم تمہارے لیے, تمہاری پاکی کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, تہجد میں دعا کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں, چاش کی نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں. اب بتائیے آپ, جب اس طرح کی دعائیں ہو رہی ہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ضرور ہم کو کامیاب اور کامران کرے گی. اور ہمارا مقصد حیدرآباد کو ترقی دلانا ہے. ہمارا مقصد حیدرآباد میں جو اس طرح کا سیلاب آیا وہ دوبارہ نہ آئے, اس کے لیے کیا اقدامات کرنا ہے وہ اقدامات کرنا پڑے گا. ٹریفک کا مسئلہ ہے, پینے کے پانی کی لائن کو اور اچھا کرنا ہے, روڈ وائڈننگ کو اور زیادہ کرنا ہے, میٹرو کو لانا ہے. یہ تمام کام مجلس کے ہیں. مجلس یہ کام کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی صرف نفرت کی بات کرتی ہے. آئی ٹی کا ایسا کریں گے, فلاں کریں گے. ارے دلی دارالحکومت ہے, ہوم منسٹر صاحب, وہاں پر آپ نے فساد کو نہیں روک پائے.
और जब फसाद हुआ तो किसकी गिरफ्तारी हो रही? अमित शाह साहब, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जो ओपनली नारे लगा रहे थे। आज आप हैदराबाद को आकर हम आपसे कहेंगे जब दिल्ली नहीं संभल रहा आपसे हैदराबाद क्या संभालेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही गुजारिश है कि जो जो तौहीन आमेज अल्फाज पुराने शहर के बारे में, हैदराबाद के बारे में बीजेपी के लोगों ने इस्तेमाल किए, मुझको जिना कहा गया। आप बताइए कि मजलिस एक सियासी जमात है। हम लोग सियासत में हिस्सा लेकर जमहूरियत के दायरे में रहकर जमहूरी तरीके से हुकूक हासिल कर रहे हैं, तो जिना कहते हैं। इसका जवाब आपको भी देना है। 1 दिसंबर के दिन आप अपने पोलिंग बूथ को रवाना होकर अपना एक वोट पतंग के निशान पर मोहर लगाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपने फजल व करम से कामयाब और कामरान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैदराबाद के अमन को मजबूत कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैदराबाद की आवाम में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के तमाम अराकीन बल्दिया को कामयाब कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों को, फासिकों के जुल्म का खात्मा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की निस्बत हैदर कर्रार से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की अजमत को बरकरार रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की खूबसूरती को बरकरार रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम के दिलों को मिलाकर इस शहर में अमन को मजबूत कर दे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर कि अल्लाह हम तमाम को, जमात के पूरे उम्मीदवारों को अल्लाह कामयाब और कामरान कर दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़िए, टाइम है, वरना मेरे पे आएगा गुनाह। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर